Good morning, students. In this video, today I am going to teach you narration, that means direct and indirect speech. So I have already taught you in class 9th narration, but it is in your syllabus, so that I am going to teach you again. Okay, narration. The definition of narration: the art of reporting the words of the speaker is called narration. Okay, and in narration there are two things by which each and every sentence is changed. First is subject, direct speech. Second is indirect speech. So what is the direct speech? The reporting of speech by reporting the actual words of a speaker is called direct speech. Means जब कोई भी रिपोर्टर उसी कथन को उसी शब्द में कहता है उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, कोई भी रिपोर्टर किसी एक का कथन को अपने शब्दों में कहकर कहता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। हियर आई हैव आल्सो रिटन द डेफिनेशन। इन इट शेयर्स द सेम इंफॉर्मेशन बट इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग समवन्स कमेंट्स, मीन्स it is different from it because this is the actual sentence said by reporting, but this is not actual word sentence. This is being said by in the reporter's word. Okay, so this is the definition of direct speech, indirect speech. I have already taught you in class 9th, and let us know the three things. Firstly, that is reporting verb, reported speech, verb of the reported speech. It is very important to know because when you will go change, then you have to know that what is reporting verb. reporting verb किसे कहते हैं? तो देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हूँ, he said I am ready. he said I am ready, ये एक डायरेक्ट स्पीच का क्या एक सेंटेंस है। तो रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये जो इन्वर्टेड कोमा आप देख रहे हैं, हियर इज द इन्वर्टेड कोमा एंड आउट ऑफ इन्वर्टेड कोमा वन ए सेंटेंस इज फाउंड। आउट ऑफ इन्वर्टेड कोमा ए सेंटेंस इज फाउंड। यहाँ पे एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस के वर्ब को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्ट। दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब सैड है, यहाँ पे से भी हो सकता है, सेज भी हो सकता है। ओके, सो this is and reported speech. After I am just telling you that what is reported speech. Here you can see there is a whole sentence inside the inverted comma. This sentence has been found in the inverted comma and this whole sentence is called reported speech. It will be called reporting verb and this whole sentence will be called reported speech and verb of the reported speech. This whole sentence is reported speech. It is inside the inverted comma and the verb, there is a verb, helping verb am. What? Am. This is, it will be called verb of the reported speech. It may also many more verbs, am, is, am, are, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो फॉर चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच वी हैव टू फॉलो द रूल ऑफ चेंजिंग। द रूल ऑफ चेंजिंग, हियर आई हैव रिटन रूल ऑफ चेंजिंग। देन लेट अस नो दैट व्हाट इज द रूल ऑफ चेंजिंग। फॉर चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच देयर आर थ्री थिंग्स, देयर आर थ्री कॉमन रूल्स बाय विच the direct speech is changed into indirect speech. First, change of person. Second, change of tense. Change of another parts of speech. Change of another parts of speech. These three things. This is what to say. This is called the backbone of the narration. It will be called the backbone of the narration. Okay. Change of person. अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो प्रेजेंट में भी होता है और पास्ट में भी होता है। ये दोनों क्या प्रेजेंट है, ये टेल है, से है और सेज है। से को टेल में बदलना है, सेज को टेल्स में बदलना है, सैड को टोन में बदलना है। ध्यान रहे कि से और सेज क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है और प्रेजेंट टेंस में होता है, इसलिए इस सेंटेंस को जब भी हम चेंज करने जाते हैं, व्हेन वी चेंज
using the any sentence into indirect speech and the reporting verb is only says, then only change of person is followed। यहाँ पे केवल क्या होगा, चेंज ऑफ पर्सन को फॉलो किया जाता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज में रहे तो केवल चेंज ऑफ पर्सन की प्रक्रिया की जाती है, केवल इसी को फॉलो किया जाता है, चेंज ऑफ टेंस को नहीं और चेंज ऑफ अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी नहीं किया जाता है, इस दोनों को टच नहीं किया जाता है। लेकिन इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट फॉर्म सैड, if the reporting verb is in the past form said, then these three rules will be followed, these three rules will be followed। और ये तीनों नियम का पालन यहाँ पे होता है जब सैड रहेगा। चेंज ऑफ पर्सन तो केवल आपको प्रेजेंट टेंस में होता है, ये दोनों नहीं होता है। लेकिन जब सैड रहेगा तो आपको चेंज ऑफ पर्सन को भी फॉलो करना है, चेंज ऑफ टेंस को भी फॉलो करना है और चेंज ऑफ अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो करना ही करना है। ओके, सो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये यू कैन सी कि मैंने एक चार्ट बनाया है, ये सारे प्रोनाउंस के चार्ट बनाया, नॉमिनेटरी केस, इसको ऑब्जेक्टिव केस, इसको पोसेसिव एडजेक्टिव, इसको पोसेसिव प्रोनाउन। एंड आई हैव ऑलरेडी टॉस्ट यू इन द 9th क्लास, मैं 9th क्लास में लिखा भी चुका हूँ। तो यहाँ पे दूसरा जो रूल है सन, ये सन के नियम पे चेंज होता है, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। आप लोग तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन जानते ही होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल लिखे हैं, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। देखिए यहाँ पे सेज है, क्या है, सेज यानी कि प्रेजेंट टेंस है, तो केवल इसके पर्सन में ही चेंज होगा, लेकिन इसके टेंस में हम लोग को चेंज नहीं करना है। वी हैव नॉट टू चेंज एनी अदर वर्ड्स और टेंस। ओके, तो देखिए ही सेज will be changed into tells, he tells me, to will be removed, and instead of inverted comma we have to use that, if when we broke the inverted comma that is used। जब भी हम लोग inverted comma तोड़ेंगे यहाँ पे that लगेगा, that हो गया। and after देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट इज आई, व्हाट इज आई, आई इज द फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इस फर्स्ट पर्सन जो है इसके अनुसार चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, आई का ही हो जाएगा, क्योंकि ये भी नॉमिनेटिव केस में है। आप देखिए यहाँ पे आई किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है, तो इसका जो सब्जेक्ट है इसको नॉमिनेटिव केस में ढूंढना है। तो ही का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ही होता है, तो ही इज़। ओके, अब यहाँ पे योर है, योर क्या चीज़ से बना है, यू से बना है। किससे बना है, यू से बना है। देखिए यहाँ पे यू से बना है योर, पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव यू से बना है, नॉमिनेटिव केस यू से पोसेसिव एडजेक्टिव योर बना है। ओके, तो यू, firstly you is the second person, so it will be changed according to object, according to object, this is the object, according to object you, the main form of this your is you। तो यहाँ पे मी का नॉमिनेटिव केस क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि आई से ही मी बनता है। अब हमको देखना है यू किस फॉर्म में है, तो यहाँ पे यू पोसेसिव एडजेक्टिव में, देख सकते हैं यहाँ पे यू किस फॉर्म में, पोसेसिव एडजेक्टिव यूर लगा हुआ है। सो हम लोग को आई का भी पोसेसिव एडजेक्टिव ढूंढ के वहाँ पे लगा देना है। तो आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई है, क्योंकि यहाँ पे तो ही इज माई फ्रेंड। ओके, सो यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दे से टू हर ही इज़ माई ब्रदर, दे से विल बी चेंज टू टेल हर, inverted comma will be broken and that will be used, and according to, and it is third person will not be changed, he is her brother। Okay, so it was our topic narration, and I will meet you in the next video with the next topic, next explanation in the narration। Thank you, you all have to study these rules, and you have to remember these all definitions, what is narration, direct speech, indirect speech, and you have to understand these all things carefully so that it will be kept in your mind। Thank you, I will meet you in the next video।